آج 13 فروری کو راولپنڈی کشمیر انٹرنیشنل ہوٹل میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ الیکشن 31 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ اس سے قبل ہائی کورٹ نے ان الیکشن کو رمضان کے بعد کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو معطل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 31 مارچ کو الیکشن کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ جناب راشد محمود عباسی امیدوار برائے جنرل کونسلر وی سی سنگل 2 یو سی بگوٹ تحصیل و ضلع ایبٹ آباد اور امیدوار برائے کسان کونسلر جاوید عباسی نے خطاب کیا۔ اس حوالے سے راشد محمود عباسی نے الیکشن میں کامیابی کے بعد علاقائی مسائل بالخصوص تعلیم صحت کے حوالے سے خصوصی اظہار خیال کیا اور کہا کہ میں علاقائی فنڈ کو عوام پر خرچ کروں گا، جس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے اور معیار زندگی بہتر ہوگا۔ مقررین میں نذیر احمد عباسی صاحب، ساجد احد چودھری ساجد، اسرار احمد عباسی اور جاوید عباسی شامل تھے۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد۔ اکتیس مارچ 2022 کو انشاءاللہ ذہنی طور پر تیار اور اگر پولنگ سٹیشن پہ آنا ہے۔ کوئی برادریزم کی سیاست سے اپنے آپ کو باہر نکالو، دوستی ازم کی سیاست سے اپنے آپ کو باہر نکالو، تعلق داری کی سیاست سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اوپن ہو کر یہ فیصلہ کرو کہ میرا کینڈیڈیٹ وہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ اہلیت ہوگی کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر وہ میرے علاقے کی فلاح و بہبود کی بات کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے لیے اس علاقے کی فلاح کے لیے کام کر سکنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ میٹنگ ہے، میں بھی پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ جیت کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے عوام کی نمائندگی کرنا، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا، اپنے علاقے کو کام لا کر دینا اور کر کے دکھانا، یہ الیکشن جیت کر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ووٹ اپنے بچوں کو ووٹ دیں، آنے والا کل اپنے بچوں کا دیکھیں۔ آج اگر ایک سلجھا ہوا ایک ایسا شخص اگر آپ نامزد کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ کل آپ اس سے آگے جائیں گے، پیچھے نہیں جا سکیں گے۔ اگر قابل آدمی کو ایک دفعہ چن لیں گے، آپ کا معیار بن جائے گا، پھر کوئی عام آدمی، کوئی کمزور آدمی دوبارہ سلیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ اپنے آنے والے کل کو دیکھیں۔ میں اپنے تمام علاقہ کے جتنے بھی مقیم ہیں ان سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں، آپ اس بندے کے ساتھ چلیں جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ رات بھی سنسان ہے، فصیل بھی ٹوٹی ہوئی، رات بھی سنسان ہے، فصیل بھی ٹوٹی ہوئی، پر ہے ستم کے جاگتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ پتہ ہے کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، لیکن چونکہ وہ ہماری برادری کا ہے، ہماری پھپھی کا بیٹا ہے، پتہ ہے کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ بھائی جب آپ کو آپ کا ضمیر اس بات پہ قائل ہی نہیں کر سکا کہ یہ بندہ آپ کے مسائل حل کرے گا، آپ اسے کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے جیسے مقرر نے قاری رشید صاحب کا نام لیا، دیکھیں تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کی لکھی جاتی ہے جو ٹکرانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی نہیں لکھی جاتی ہے جو منافقت کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو یہ خفا ہو جائے گا۔ قاری رشید صاحب کا نام ہمیشہ ہمارے گاؤں کی سیاست میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ 6 فٹ 5 فٹ کا بندہ، وہ جہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا آپ کے لیے لڑ جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ ہمارے گاؤں کا حق ہے اور یہ میں لے کے دوں گا آپ کو، اور وہ آپ کو پہنچاتا تھا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو وقت ہے، یہ وقت و حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے راشد صاحب کی صورت میں ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے، جس کے فائنینشلی ایشو نہیں ہے، جس کے گھر بار اپنے جو اپنے یہاں پہ لیوش لائف گزار رہا ہے، لیکن وہ گراں کی بہتری کے لیے، گاؤں کی بہتری کے لیے، علاقے کی بہتری کے لیے، روڈ کی بہتری کے لیے اور دوسرے جتنے بھی علاقائی لائف سٹائل ہے لوگوں کا ان کی بہتری کے لیے آپ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور
मैं आप तमाम दोस्तों नौजवान साथियों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने वोट को सही इस्तेमाल करें और आप अपने वोट देने से पहले एक दफ़ा ज़मीर से ज़रूर पूछें कि आया इस बंदे को हम वोट दे रहे हैं वो इसके काबिल है या नहीं। इंसाफ का सूरज निकलेगा, तुम आओ हमारे साथ चलो। इंसाफ की खातिर निकले हैं, तुम आओ हमारे साथ चलो। ना झूठों से उम्मीद रखो, ना लोटों से कुछ आस रखो। हम सच की खातिर निकले हैं, तुम आओ हमारे साथ चलो। हम अपने रहबर खुद होंगे, अपनी मंजिल खुद होंगे। उम्मीद की खातिर निकले हैं, तुम आओ हमारे साथ चलो। इंसाफ का सूरज निकलेगा, हाँ कोचा कोचा बदलेगा, तुम आओ हमारे साथ चलो। हम झुकने वाले लोग नहीं, हम बिकने वाले लोग नहीं, तुम आओ हमारे साथ चलो। हम सबका एक ही रास्ता है, हम सबकी एक ही मंजिल है। धरती की खातिर निकले हैं, तुम आओ हमारे साथ चलो। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का बेहद मशकूर हूँ कि जिसने मुझे आज यहाँ तौफीक दी कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद मैं आप तमाम भाइयों, दोस्तों और नौजवान साथियों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारा जो एजेंडा है वो बल्दियाती इलेक्शन के मुताबिक है। जैसा कि आप तमाम हजरात को ये इल्म है कि 31 मार्च को 31 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। मुझसे पहले तकरीरें की, उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। मेरा मंशूर है सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की, अपने गांव की खिदमत करना, अपने गांव के मसाइल हल करना। और मैंने अपने गांव में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद और आपके तहमन से एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बनाए, पानी का काम कराए और रोड का काम कराए। जो आप मेरे आइज विटनेस हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता है मैंने ये फैसला क्यों लिया है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई लालच नहीं है, ना तो मैंने अपना नाम कमाना है और ना मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़कर पैसा कमाना है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो आप ऐसे नुमाइंदे को चुने। ये नहीं है मैं ही हूँ सबसे अच्छा, नहीं, तो बस सफर मुझसे भी अगर कोई बेहतर है आप उसको वोट दें। जिसने आपकी, ये याद रखें, जो बीसी नाज़म होगा वो तहसील में आपकी नुमाइंदगी करेगा, वो तहसील कौंसलर भी होगा। ये गांव की नुमाइंदगी नहीं है इस मरतबा। सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ तब्दील की है। पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसलर था, अब वो ख़त्म करके तहसील कौंसलर बनाई है। और जो बीसी नाज़म होगा वो तहसील कौंसलर का मेंबर होगा, तहसील में जाएगा। और ये याद रखें तहसील में कम से कम 200-250 बंदा होगा, यानी मेम्बरान होगा। तहसील का एक मेयर होगा। आप ऐसे बंदे को चुने जो आपका तहसील कौंसिल में डिबेट कर सके, आपके मसाइल तहसील मेयर को बता सके और वहाँ से आपका हक छीन कर ले आए, वहाँ से आपका बच्चों को हक छीने, उसमें ये क्वालिटी हो। वो स्टेज पर खड़ा होकर, वहाँ पे अपनी सीट पर खड़ा होकर बता सके कि ये मेरे गाँव की ये मसाइल है। 31 मार्च को आप सब लोगों ने पोलिंग स्टेशन पे होनकर पे जाना है। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हुई तो आप मुझे हुक्म करेंगे, मैं आपकी कन्वेंस का भी इंशाल्लाह बंदोबस्त करूँगा। मेरी मेजॉरिटी इस्लामाबाद और पिंडी में मेरे दोस्त भाई अजीज हैं, मैं उनके लिए इंशाल्लाह अरेंजमेंट कर सकता हूँ और करूँगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वोट ज़ाया नहीं करनी है, आपने जाना जरूर है। दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार। हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इलेक्शन हुए, इनसे जानेंगे राशिद महमूद अब्बासी साहब से कि इनका क्या विजन है, किस सतह की इंटरेस्ट रखते हैं और लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। आइए राशिद महमूद अब्बासी साहब से ये तमाम तर चीज़ें पूछते हैं। जी राशिद महमूद अब्बासी साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप जिस टीवी चैनल से आए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा तल्लक गांव पे खनक्कर से है, जो कि एक नहायत ही पसमानदा तरीन गाँव है। वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इस मरतबा बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। मैं जनरल कौंसिल के लिए जनरल कौंसिल का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह मेरा ये विज़न है कि मैं अपनी गाँव, अपनी आवाम, अपने लोगों के मसाइल हल करूँ। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि मेरा टॉप प्रायोरिटी पे है एजुकेशन। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के तमाम बच्चे, तमाम बच्चियाँ कम से कम मैट्रिक तक तालीम हासिल करें। बाकी जो मामलात हैं वो भी हल होने चाहिए, जिस तरह रोड है, पानी है, बिजली। लेकिन ये चूँकि MNA और MPAs लेवल के लोगों का काम है, मैं VC का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं VC की नुमाइंदगी करूँगा। और मेरा ये विज़न है और मेरा ये इंटरेस्ट है कि मेरे गांव के बच्चे, मेरी गांव की बच्चियां कम से कम मैट्रिक तक तालीम ज़रूर हासिल करें। आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? मैं बिल्कुल किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं हूँ आज़ाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहले मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर था और अब मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के यहाँ पे वर्कर और नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो मेरी सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुनियादी क्या तरजीहात हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ कर दी कि मेरी सबसे ज़्यादा तरजीह हो गई एजुकेशन। क्योंकि कोई भी गाँव, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी महल्ला एजुकेशन के बगैर अधूरा है। जब मेरे गांव के लोग तालीम याफ्ता होंगे, मेरे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, वो खुद ब खुद अपने मसाइल इंशाल्लाह हल करेंगे। राशिद महमूद अब्बासी साहब, इस हवाले से बताइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में देख रहा हूँ नौजवानों की, लेकिन इस प्लेटफार्म से भी कुछ कम नौजवान सामने आए। नौजवानों ने कोई अपनी तरजीहात बयान नहीं की, कुछ बताया नहीं। सीनियरिटी पर ही मैं देखता रहा कि लोग आके बात कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हर आदमी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। आपने सुना है, मेरे जो मुकर्रीन थे उनकी तकरीरें आपने सुनी है। हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी है। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो माजी हमारा गुजरा है और माजी में हमारे जो नुमाइंदे थे वो बहुत अच्छे थे। हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो नालायक थे और हम लोग लायक आ गए। लेकिन एक ज़रूर बात मैं कहूँगा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में जो नुमाइंदगी की है उसमें थोड़ी सी कोताहियाँ भी की हैं। उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने गाँव के लिए, अपनी आवाम के लिए जितना कुछ करना था उससे बहुत कम प्रोग्रेस उन्होंने शो की है। ये भी बताइएगा कि VC संगल 2 बकोट के सबसे अहम तरीन मसाइल क्या हैं जो आपके नज़दीक हैं? VC संगल 2 बकोट में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स। जबकि प्राइमरी स्कूल बॉयज़ के जो 3 कमरे बने वो हमारी अपनी मदद आपके तहत बने। हमारे टीचर साहबान ने वो कमरे 3 बनाए हैं बच्चों के लिए, जबकि वेयरएज़ हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे वो तालीम हासिल करने में मजबूर थे। तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उस तालीम के रुझान को तवज्जो करूं और वहाँ की जो बिल्डिंग है स्कूल की, अगर वो शॉर्टेज है, अगर वो वहाँ पे मौजूद इस वक्त नहीं है, अगर उसमें कोई खामियाँ हैं तो कम से कम उनको कंप्लीट करूं और अपग्रेडेशन कराने में किरदार अदा करूं। PTI की हुकूमत है पाकिस्तान में और साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी। पहला जो फेस हुआ इसका, उसमें मुश्किल तरीन उन्हें सामना करना पड़ा। उसका ये हुआ कि वहाँ से जो दूसरी जमात हैं JUI, उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन रखी। आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आपको ऑफ़र होती है PTI के टिकट से तो क्या उससे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे? ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये बिफोर टाइम है, इसका मैं अभी कोई जवाब नहीं दूँगा। बाकी कोई पैगाम अपने एरिया के लिए? मैं अपने तमाम दोस्तों, नौजवानों को ये दरख्वास्त करूँगा कि 31 मार्च को वो ऐसा डिसीजन लें जिससे कम से कम आपके आने वाला मुस्तकबिल ब्राइट हो। बस ये मैं उनको एक पैगाम दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूँ। नाजरीन, आपको बताएं कि किसान काउंसलर के उम्मीदवार जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या बुनियादी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। किसान काउंसलर के उम्मीदवार हैं, किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। उसके बाद मैं अपने गांव के लिए सबसे पहले बलदियाती इंतखाबात है, हमारे बहुत से नुमाइंदे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो हमसे भी बेहतर हैं। मैं सबसे बाद में हूँ, पहली बार हिस्सा ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल भी किसान काउंसलर रहे हैं लेकिन अपने गांव में कोई चीज़ ना ला सके। कम से कम अपनी जेब से हम तो नहीं ला रहे, लेकिन कम से कम जो आवाम का हक़ है, जो लोगों से लिया जाता है, वो छीन कर ला कर अपनी आवाम को दूं और उनका ख्याल रखूं। बहुत से मसाइल हैं
ہماری سڑکیں، پانی، بجلی ہیں تو صحیح، لیکن کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ وہ خود اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ جیپ تک نہیں جا رہی، وہ بھی ہمارے پیش و نظر کے حصہ ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ صرف ووٹ لینا نہیں ہوتا کہ ہم نے ووٹ لے لیا یا الیکشن لڑ لیا، الیکشن لڑ کر ہمیں اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے کہ وہ ہماری ساتھ دیں گے اور اپنا حق وہاں استعمال کریں گے جو اس چیز کا اقدار ہوگا۔ عوام کے لیے کوئی پیغام؟ میں عوام کو، اپنی عوام علاقہ پیخ نکر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ کم از کم اس انسان کو دیں، اس شخص کو دیں جو کم از کم تحصیل ضلع ایبٹ آباد میں جا کر دفتر سے، لوگوں سے، منسٹر سے، ایم پی اے سے اپنا حق چھین کر عوام تک پہنچا سکے۔ عوام اس لیے ہمیں منتخب کرتی ہے، اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ ہم انہیں ان کا حق دے سکیں۔ ایسا نہیں کہ کل بجلی، پانی، گیس، کسی چیز کی پرابلم ہو تو ہم عوام پہ چندے لگا دیں کہ آپ اپنے چندے دیں اور ہم اپنا کام کروائیں۔ تو اس لیے عوام کا کیا قصور ہے، وہ ہمیں ووٹ دے کر منتخب اس لیے کرتے ہیں کہ ان پہ بوجھ نہ پڑے۔ اگر ہمیں ووٹ لے کر بھی عوام پہ بوجھ پڑنا ہے تو پھر ہمیں الیکشن میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کامیاب کرے جو صرف عوام کے حق کے بارے میں سوچتا ہو، عوام کی پریشانیاں دور کر سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم ملا، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔